اور کوئی ایسا ترم خان آپ میں ہو جو کہ میں تو کبھی ڈی موٹیویٹ ہی نہیں ہویا، میں تو کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا، مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی، تو بھئی ایسا ترم خان دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا پاٹے خان دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی، ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ تکلیف میں نہیں آتے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا موٹیویشن لیول نیچے نہیں جاتا تو پھر آپ جو ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہیں پھر آپ جو ہیں وہ انسانی مخلوق نہیں لگتے، آپ پھر کوئی فرشتے ہیں کوئی، جو آپ کہتے ہیں کہ میرا تو کبھی لیول آف موٹیویشن نیچے نہیں جاتا۔ تو آپ اگر انسان ہیں تو انسان کا لیول آف موٹیویشن نیچے بھی جاتا ہے، آپ بھی جاتا ہے، اچھے واقعات ہوئے، خوش چھلانگے جمپ، ایسے آپ نے کہا کمال ہو گیا، اس مہینے مجھے 5 لاکھ ریال کا فائدہ ہو گیا، آپ نے چھلانگے مارنا شروع کر دی، اور کسی مہینے آپ کو 50,000 کا نقصان ہو گیا تو آپ کی ہوا نکل گئی، آپ ایسے غمگین پریشان دکھی رہنا شروع کر دیا۔ تو کیا کام کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے؟ کیونکہ اس صورتحال کے اندر زیادہ دیر رہنا بہت نقصان دہ ہے، اس کے اندر آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ اگر آ جائے اور فوراً چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آ جائے اور ٹھہر جائے اور غصے میں ہی آپ رہیں تو پھر آپ بہت ساری برائیوں کا موجب بن سکتے ہیں، پھر بہت ساری برائیاں ہیں جو آپ سے ہو سکتی ہیں۔ قتل کب ہوتا ہے؟ غصے کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو مرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو غصہ آ جائے، تو غصہ آیا اور چلا گیا تو کوئی بات نہیں، آیا اور چلا گیا، ختم، اب اگلے ہی لمحے آپ نے اپنی زندگی اپنے اگلے کاموں کے اندر مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے۔ لیکن اگر وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری رہی اور اس کیفیت نے آپ کی گردن کو پکڑ لیا اور کنٹرول کر لیا آپ کو، یہ خطرناک بات ہے۔ یہ والی چیز جو ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اگر تیش آیا اور ایسا آیا کہ خوف خدا ہی نہ رہا تو پھر تو آپ ساری حدیں پار کر گئے، پھر تو آپ پھر مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب غصے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کوئی حل ہے؟ وہ مولوی صاحب کہیں گے اللہ کے بندے کیا کہا؟ آپ کہہ رہے مولانا صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، وہ میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ تو عالم صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے کبھی خوشی میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ ساری لوگ ہی غصے میں دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا موسم بہت اچھا ہو، ایسے ہلکی ہلکی رم جھم ہو اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو اور ایسے موسم بڑا ٹھنڈا ہو، آپ نکلیں گھر سے اور دفتر جائیں اور دفتر کے اندر آپ کو پتا چلے آپ کے لوگ، آپ کی ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اس دن آپ کو پتا چلے آپ کو منافع ہوا ہے لاکھوں ریال کا اور آپ خوش ہو جائیں، اور اس دن آپ کسی تقریب میں جائیں، وہاں آپ کو دستار پہنائی جا رہی ہو، میڈل دیا جا رہا ہو، شیلڈ دی جا رہی ہو، آپ اور خوشی سے ایکسائٹڈ پھولے نہیں سما رہے، اور پھر آپ کو دوستوں کی محفل میں جائیں، وہ دوست آپ کی آؤ بھگت کر رہے ہوں اور آپ نے پورا دن شاندار گزارا، خوش گزارا، اور موسم بھی اچھا، کاروبار بھی اچھا، نوکری بھی اچھی، دوست بھی اچھے، استقبال بھی اچھا، عزت بھی بھلی، اور آپ شام کو یہ ساری عزتیں سمیٹ کر گھر لوٹیں اور آپ اپنی زوجہ کو کہیں زوجہ محترمہ آج میں بہت خوش ہوں، آج میری بہت کاروبار میں ترقی ہوئی، بہت عزت ہوئی، دوستوں نے بڑا مجھے استقبال کیا، آج فلاں محفل میں مجھے دستار پہنائی گئی، اس خوشی میں میں آپ کو ہدیہ طلاق پیش کرتا ہوں۔ ایسا کبھی ہوا؟ ایسا تو نہیں کبھی ہوا۔ غصے میں ہی آپ کرتے ہیں بھائی، وہ غصے میں ہی وہ کام ہوتا ہے، ایسے تھوڑی یہ ساری کیفیت ہوئی
और आप आए और आपने कहा ये हदिया आपकी खिदमत में पेश है। ऐसा तो दुनिया में वाकया मैंने नहीं कभी सुना आज तक, आपने भी पता नहीं सुना होगा ऐसा कभी। इस खुशी के आलम में आप इतना आला काम कर जाए तो इसका मतलब गुस्से में ही वो बुरा काम करते हैं, नापसंदीदा काम करते हैं, बदतरीन काम करते हैं। तो फिर वजह गुस्सा है, तो गुस्सा किस शख्स को आता है? जो डीमोटिवेट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही वक्त में खुश भी हो और एक वक्त में गुस्से में भी हो, यह मुमकिन नहीं है। या आप खुश हैं, या आप गमगीन हैं, या आप सुकून में हैं, या आप बेसुकूनी में हैं, या आप चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, या आप बेचैन हैं। ऐसा नहीं हो सकता मैं चैन भी है अंदर और बेचैनी भी है, खुशी भी है और गम भी, एक ही वक्त में नहीं ये कैफियत बरकरार रह सकती। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर यकीन भी हो और खौफ भी हो, ये मुमकिन नहीं है। ये एक वक्त के अंदर दोनों कैफियत मुमकिन नहीं है कि आप इनको बरकरार रख सकें। तो जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। अब तैश में आ गए लेकिन फौरन आपको खौफ खुदा आया और आपने फौरन चीजें ठीक कर ली, बेहतर कर ली, तौबा कर ली, इस्तगफार कर ली, अच्छा कर लिया, बेहतर कर लिया, तो अब आप फिर वापस उसी अच्छी वाले सर्कल में लाइफ के आ गए हैं, बेहतरी वाली जिंदगी में आ गए हैं। तो अगर आज के जमाने में आपको अपने आप को मोटिवेट रखना नहीं आता, खुश रखना नहीं आता, अपने आप को सुकून में रखना नहीं आता, तो फिर आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। लाखों रुपए, लाखों रियाल, लाखों डॉलर, लाखों यूरो, लाखों पाउंड्स, वो अगर आपको खुश नहीं रख पा रहे, अगर गाड़ियां आपको, महल, घर, इज्जत, मैंशंस, कॉन्डोज, ये तमाम चीजें आपको खुश नहीं रख पा रही, तो इसका मतलब है एक अहम तरीन चीज आप मिस कर रहे हैं। वो अहम तरीन चीज खुशी है। दुनिया में दो ही वजह से लोग कोई काम करते हैं। पहला, खुशी के हुसूल के लिए कुछ करते हैं, या गम से निजात के लिए करते हैं। या वो कोई काम करते हैं कि वो काम से उन्हें खुशी हासिल होगी, या वो कोई काम इसलिए करते हैं कि कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ से वो बाहर निकल जाएंगे। नेक आदमी नेकी इसलिए करता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, और या फिर नेक आदमी बुराई से इसलिए अपने आप को बचाता है कि मैं क्या होगा, दोजख से बच जाऊंगा। तो देखिए, नेकी करने का जो जज्बा है, वो जज्बा उसको किसी मंजिल तक पहुंचा रहा है, और वो मंजिल रज़ाए इलाही है, और राजी जिससे अल्लाह होगा उसको जन्नत में जगह देगा। और बुराइयों से क्यों बचता है एक नेक आदमी? अब उसके पास मोटिव ये है, उसके पास मकसद ये है कि अगर ये मैंने बुराई की, अगर ये बुरा काम किया, अगर ये बदकारी की, अगर ये बदतरीन काम किया, तो इससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, और नाराज होंगे तो मैं दोजख में चला जाऊंगा। तो या तो वो जन्नत में जाने के लिए नेकी कर रहा है, या दोजख से बचने के लिए अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है। इसी तरह जिंदगी, ये जो दुनिया है, इसके अंदर भी जो भी काम हम करते हैं, तालिब इल्म क्यों पढ़ रहा है? वो पढ़ इसलिए रहा है कि अगर पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा कारोबार करेगा, प्रोग्रेस करेगा, नाम होगा, पहचान होगी। या वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ना पढ़ा मैं, अभी मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है, अगर मैं ना पढ़ा तो अब्बा से लितर परेड होगी, डंडे पड़ेंगे, सोटे पड़ेंगे, घर से गालियां पड़ेंगी, लोग बुरा भला कहेंगे, उस्ताद से मार पड़ेगी। तो वो उस मार से बचने के लिए, उस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए किताबें खोल के लगा हुआ है रटने और पढ़ रहा है। यानी या वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसको अच्छा मुकाम मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा कारोबार मिलेगा, अच्छा कैरियर मिलेगा, या वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसको जो, अगर उसने अच्छा ना पढ़ा और अच्छे इम्तिहान में नंबर ना लिए और पास ना किया, तो उसे घर में अब्बा के लितर नजर आ रहे हैं, उसे अम्मी की गालियां नजर आ रही, और उसे घर वालों से जिल्लत और रुसवाई नजर आ रही है। तो वो उससे बचने के लिए लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आप जिंदगी में या खुशी के हुसूल के लिए काम करते हैं, या गम से निजात के लिए काम करते हैं। ये दो ही बड़े मोटिव हैं जिसकी वजह से इंसान काम करता है। डाका जो डालता है, डाकू, चोर, वो उससे आप पूछें क्यों डाल रहे हो, तो वो कहेगा मेरे घर में ये मसला है, वो मसला है, मैं उससे निजात के लिए वो गलत रास्ते पे चल पड़ा हुआ है। तो
ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को डीमोटिवेशन से कैसे निकालेंगे। तो पहला काम जो आप कर सकते हैं, अगर आप पे कभी तकलीफ तारी हो जाए, गम तारी हो जाए, परेशानी तारी हो जाए और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहें, उस गम की टेंशन से, उस बेसुकूनी से, बेचैनी से आप बाहर निकलना चाहें, तो जो पहला काम आपको करना होगा वो काम है कि आप जहां से परेशानियां हल होती हैं उस ताकत की तरफ रुजू कर लें। जहां से तमाम दुखों का मदावा होता है उस बड़े मालिक की तरफ, उस खालिक की तरफ, उस राज़िक की तरफ, उस वाहिद की तरफ अपनी तवज्जो का मरकज कर लें, और वो है अल्लाह। यानी आप किसी भी तकलीफ में, किसी भी परेशानी में अल्लाह के साथ रुजू कर लें, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दें। जैसे ही आप उसको पुकारेंगे तो उसके यहां तो परेशानी, दुख, तकलीफ, उस कैफियत से आपको निकालना ऐसे ही है, कुन फयकुन, कह दिया और हो गया। यानी कहा कुन और फयकुन, पास हो गया, तो उसकी तरफ रुजू कर लिया जाए। पहला स्टेप, पहला सोर्स, पहला जरिया यह है। आप क्या करें? कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दें। आप अपने आप को उस नेगेटिव फीलिंग से, उस जज्बे से अपने आप को बचाने के लिए आप कोई अच्छा जज्बा लाएं। और अच्छा जज्बा क्या है कि कुरानी आपने मुताला शुरू कर दिया, आप कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दें, तिलावत सुनना शुरू कर दें, आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ना शुरू कर दें। ये पहला काम है, यानी रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो आप किसी परेशानी, कोई परेशानी ऐसी नहीं, कोई तकलीफ ऐसी नहीं, कोई दुख ऐसा नहीं, कोई गम ऐसा नहीं कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और हल ना हो। यस और यस, इस दुनिया में हर गम, हर तकलीफ, हर परेशानी का जैसे ही अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, सारी चीजें खुद ही सुकून आ जाएगा, ऐसे कल्बी इत्मीनान आ जाएगा और बेचैनी खत्म हो जाएगी और इज़्तिराब खत्म हो जाएगा। वो जो इज़्तिराबी कैफियत है, उस इज़्तिराबी कैफियत को दूर करने का तरीका ही है कि आप रुजू करें अल्लाह की तरफ। और कैसे रुजू करें? कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। कुरान के 5 हुकूक हैं। पहला है इसको सीखना, दूसरा है इसको पढ़ना, तीसरा है इसको समझना, चौथा है इस पर अमल करना, और 5वां है इसको दूसरों तक पहुंचाना। ये 5 हुकूक हैं कुरान मजीद के हम पर। आपने इतनी किताबें पढ़ी, एमबीए किया, कईयों ने पीएचडी कर ली, कईयों ने जो है वो मास्टर्स कर लिया, किसी ने 12 पास कर ली, कोई करोड़पति अरबपति बन गया कारोबार में, कोई नौकरी में आगे निकल गया, कोई अपने मुल्क से दूसरे मुल्क चला गया पेशा अपना बेहतर करने के लिए। इतने बड़े बड़े काम आपने कर लिए, लेकिन अहम बात यह है क्या हमने कुरान का पैगाम समझने के लिए हमने कोई मेहनत की, कोई कोशिश की? तो पहला ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ कर लें। आप जब उस परेशानी के बारे में सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा लोगों के ऊपर, आपको मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे साथ वाकया हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ फलाने बुरा कर दिया, फलाने धोखा दे दिया, आप एक नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे। लेकिन अगर आप जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिक्र में आपकी जबान जिक्र से हर वक्त इसमें मसरूफ रहे, आपके अंदर इत्मीनान रहेगा, मोटिवेशन रहेगी, हिम्मत रहेगी, वलवला रहेगा, जोश रहेगा, आगे बढ़ने की तड़प रहेगी, उमंग रहेगी, जज्बा रहेगा। आप थके हारे नहीं रहेंगे। मोमिन वो नहीं होता जो सोया रहे, थका हारा रहे, लेटा रहे। वो मोमिन कहां से हो गया? मोमिन वो है जो तवाना हो, जो सेहतमंद हो, जिसके अंदर चुस्ती हो। सुस्ती मोमिन के अंदर नहीं होती। सुस्ती और मोमिन का कहां से आपस में ताल्लुक निकल आया? भाई जो सीरत पढ़ते हैं वो ये पढ़ें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आपकी चाल कैसी थी, यानी आपकी चाल कैसी, चुस्त शख्स की चाल थी। और आपका जो पेट था
وہ آج کے زمانے کے مومنوں کی طرح نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو پہلے پیٹ ملتا ہے اور بعد میں دوسرے بندے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بندہ کہاں گیا,